Assalamu alaikum everyone. I have started the recordings, and as you all know that this is the second last session of our course Cyber Safe, and in today's session we're going to complete the remaining part which we have left in the previous week's session. So as we are on the last content point of our course, which is of preventions from those hackers techniques or those areas which will make your system affected. So what are their preventions, like how we can prevent those techniques, or you can say those softwares or those types of hacking that are being very much common in nowadays. So we're going to discuss the prevention in today's session. But before that, I just want to conclude some things. Like, first of all, this is the second last session, and in the session, in the last part of the session, we're going to discuss the home task, which is like some conditions that we have made to judge you, like if you are being stuck in these kind of situations, in these types of conditions, so how you can deal with it, so that we can know कि आप लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पर समझी है, so you can implement in your life as well. But this is second last session. But in last session we're going to discuss some different thing. Like we're not going to discuss about the slides. We have planned something else, like it is called a special session. And in that session we're going to discuss some thing like related to websites, like how you can create the websites for free, or we can also discuss some programming codes or some type of these things. So अभी उसको सही तरीके से disclose आप नहीं कर सकते, but that session would be very much important, and this would be the special session about some 1 hour or 1 hour 30 minutes. So I want you all to join that as well. And in today's session, in the last, we're going to send you the home task. I'm going to explain it in today's session only, and then you have to submit it on our next session of cyber safe, which is of next week, okay, Tuesday. So let's start today's session. And just concluding one more thing, like if you have any sort of question regarding solving your home task, or if you are not well aware of those situations which we have made, so you can ask us through our email, or we will also going to share the WhatsApp number as well in today's session, so you can deal with there as well, okay. अनदर थिंग इज़ लाइक इस सेशन के अंदर भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ हम लास्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रिवेंशंस को। हमने जितने भी हैकिंग टेक्निक्स और जितने भी सॉर्ट ऑफ हैकर्स, यू कैन से वायरसेस, और जितने भी उनके टाइप्स हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशंस के अंदर, व्हिच आर यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वहीं से ही कुछ सिचुएशंस हमने बनाई हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस सेशन के अंदर भी आप पहले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। एंड लास्ट पार्ट इज़ लाइक, जिन लोगों ने सेशंस को जॉइन नहीं किया, वी हैव ऑल मार्क्ड योर अटेंडेंस, वी हैव ऑल मार्क्ड योर पार्टिसिपेशन, लाइक हाउ मच पार्टिसिपेशन you have shown. And now you have a last chance. If you will not submit the home task on time, or on the previous or you can say on the upcoming session, you are, your deadline is like, आपको आने वाले सेशन से पहले पहले अपना ये होम टास्क जो है वो सबमिट कराना है। एंड इफ यू कैन नॉट able to do that, so definitely you will not receive your certificates, your digital badges, so you cannot get it on time. When once you submit your home task, then you will going to get it your through the email, your सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल बैजेस। वन मोर थिंग, आप लोगों ने जो है होम टास्क सबमिट हमें कराना है व्हाट्सएप के थ्रू, दैट्स व्हाई वी गोइंग टू शेयर यू द व्हाट्सएप नंबर। और इफ़ यू आर वेल कन्वीनियंट विद ईमेल एड्रेस, चूँकि ईमेल में नॉर्मली होता है कि कुछ लिमिटेड जो है वो आप लिमिट उसकी यू कैन से कि 25 एमबी से ज़्यादा की जो है फाइल नहीं शेयर कर सकते। सो इसीलिए वी हैव शेयर्ड अ व्हाट्सएप नंबर कि आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर, आइदर इट वुड बी इन पीडीएफ फॉर्म, आइदर वुड बी इन अ स्लाइड फॉर्म, और यू कैन से यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद इन अ डॉक्स फॉर्म एज वेल। तो आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल को, अपने होम टास्क को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, बट यू हैव टू सबमिट इट ऑन टाइम, ओके। सो लेट्स डिस्कस द टुडेज सेशन। एज you all know that we have discussed this about the malware in previous session, but I'm going to just give you the short recap, then we're going to move towards all those softwares which we have to discuss in today's session. So the malware is a short for malicious software, meaning software that can be used to compromise computer functions, steal data, bypass access controls, or otherwise cause harm to the होस्ट कंप्यूटर। ये वही चीज़ है, इसके अंदर ये नॉर्मली ये होता है कि हैकर जो है वो कोई
बहुत सारे malicious सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे कोई फेक सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको लगता हो कि दैट सॉफ्टवेयर आर द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, बट इट वाज एक्चुअली a planted software that is used to be planted just because to make your computer malfunction, steal your data. Either it would be any pictures, either it would be any documents, or it can be anything, but the purpose is like to steal your data. Second is the bypass the access control. इसका ये मतलब ये है कि he will gain the access of your each and every IDs, passwords, and the your you can say कहीं भी आपने login किया हो, they will get the access of it. Okay, then you have the malware is a broad term that refers to a variety of malicious programs. Most common types of malware are adware, bots, bugs, rootkits, spyware, trojan horses, viruses and worms. So ये सब जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रिवेंशन को भी। ये आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है फॉर टुडेज सेशन। ओके, एडवेयर। मैं एडवेयर को पिछले समय डिस्कस कर चुका हूँ डीपली, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका छोटा सा रिकैप दूंगा। एडवेयर इज लाइक अ शॉर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। इट्स अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिलीवर एडवर्टाइजमेंट्स। ये वही होता है एडवेयर। नॉर्मली मैं आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में। नॉर्मली आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं फॉर सर्चिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, सो यू विल गोइंग टू सी यू विल गोइंग टू रिसीव ad, any type of ad, like it can be any application ad, और वो किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग हो सकती है या कोई भी ऐसा ऐड हो सकता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सो समटाइम्स दोज आर द यू कैन से पेड एड्स विच आर एक्चुअली नोन एड्स जो आप उनको जानते भी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि OLX का जो ऐड होता है, मगर मैं इस तरह के ब्रांड्स के नाम नहीं चाह रहा यहाँ पर इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं उनके नॉर्मली एड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। पर कुछ होते हैं जो कि अननोन एड्स होते हैं, जो कि आपने कभी ना देखी हो, कभी ना सुने हो, एंड दे वांट यू टू द वेबसाइट वांट यू टू ओपन दैट एड, सो दैट वुड कॉज योर यू कैन से योर सिस्टम टू बी हैक्ड। आपका सारा सिस्टम का जो जितनी भी डिटेल्स है वो सब चली जाएगी उनके पास, हैकर के पास, एंड योर कंट्रोल्स, योर यू कैन से योर पासवर्ड्स, योर IDs, the areas which you have login, they all will the hacker will all get your control access. Okay, just because you have clicked on that unknown advertisement which you have seen on the website. Okay, चाहे वेबसाइट नोन हो, आप जानते हो वेबसाइट को, फेमस वेबसाइट हो, मगर फिर भी उसके ऊपर जो एड्स आ रहे होते हैं नॉर्मली दे कैन कॉज द एडवेयर। Common example of adware includes pop-up ads on website and advertisements that are displayed by software. वही चीज़ कभी आपको वहाँ पर उनके होम पेज पर या प्रीफेस पर कुछ एड्स दिख रहे होंगे, कुछ जो है वो ऐड पॉपअप हो जाते हैं, जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स सा बनाता है या कोई ऐड सा बनाता है, दे वांट यू टू क्लिक ऑन इट। तो इस तरह से जो है वो एडवेयर कॉज करता है योर सिस्टम टू बी क्रैक्ड, और आपका जितना भी डेटा, जितना भी सिस्टम का जितना भी इंपॉर्टेंट और प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, दे विल gain the hacker will gain the access of it. Oftentimes, software and applications offer free versions that come bundled with adware. हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कुछ फ्री सॉफ्टवेयर दे रहा होता है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन, और यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन, और आप उसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। वो बहुत प्रेशराइज़ करते हैं, बार-बार वो स्क्रीन ओपन हो रही होती है, so you just have to leave it, just have to ignore it, okay? Most adware is sponsored or authored by advertiser and serves as a revenue generating tool. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो है वो ऐसे एड्स आपको शो हो रहे होते हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड एड्स, they are showing that this is a sponsored ad, or they are being authored by an advertiser or serves as a revenue generating tool. इसका मतलब ये है कि वो एड्स जो है वो नॉर्मली उस जो भी XYZ कंपनी है उसका एड रेवेन्यू के लिए वहां पर वो शो हो रहा होता है। शॉर्ट के लिए बता दूं चलूं कि ये एक तरह से, ये भी एक तरह से स्टंट होता है दैट विल मेक दैट एड लुक ओरिजिनल, कि आपको लगे कि नहीं ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड है तो ये उस कंपनी का ही होगा, बट नो, इट इज अ पार्ट ऑफ एन एडवेयर दैट विल कॉज योर डेटा टू बी हैक्ड। ओके, तो आई होप आपको ये एडवेयर समझ में आ गया होगा। पिछले सेशन के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, पर आज हमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर अप करनी है ताकि सेशन लंबा ना हो जाए। तो इसीलिए वी गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। मगर फिर भी अगर आपको क्वेरी है तो आप माइक ओपन करके, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो। ओके, सो द बॉट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बॉट्स। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था। तो द बॉट्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। लाइक इसमें ये होता है कि बॉट्स एक तरह से इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन द गेमिंग, इन द फील्ड ऑफ गेमिंग, एंड दे यूज टू परफॉर्म द टास्क
by itself. Okay, while some bots are created for relatively harmless purposes, like in video games, internet auctions, online content, etc., it is becoming increasingly common to see bots being used maliciously. अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बॉट्स जो है वो एज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जो कि हार्मलेस पर्पसेस के तौर पे बनाए गए थे। लाइक वीडियो गेम्स आप देखते हैं, खुद ही चीज़ें जो है वो कैरेक्टर कंट्रोल हम करते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल, एंड दे आर डूइंग द मल्टीपल एक्शंस बाय इटसेल्फ। या फिर इंटरनेट ऑक्शंस हो जाए या ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हो जाए, किसी भी ऐसे चले ऑनलाइन फॉर्म भी ले लें, तो इस तरह की चीज़ें होती है जो कि खुद ही जो है वो ऑपरेट हो रही होती है। सो दे आर एक्चुअली लीगल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आर बी यूज्ड, दैट यूज द बॉट्स ओनली। ओके, मगर कहीं-कहीं पर ऐसे भी जगह पर बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट आर बीइंग इल्लीगल। What are they? Let's discuss about it. Example of bots are like DDoS attack as spam bots that renders advertisements on website. Obviously जो आप ads देखते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ना सिर्फ एडवेयर का जो है वो you can say उसकी पार्टिसिपेशन होती है, but the bots are also being available there, and the bots are also being used to show up that type of websites. सही है। इसका प्रिवेंशन मेथड ये है कि वेबसाइट कैन गार्ड अगेंस्ट बॉट विथ कैप्चा टेस्ट दैट वेरीफाई यूजर्स एज अ ह्यूमन। ये लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। ये कभी कभी आप जब ईमेल आईडी या कोई भी आप अपना जो है वो एरिया आपको लॉग इन करते हैं, सो यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, लाइक द कंप्यूटर विल आस्क यू अबाउट द like they want you to recognize yourself and make this thing clear that you are not a robot. So you have to click on it like I am not a robot, and then they will going to show you some pictures। कुछ भी हो सकती है पिक्चर्स, रोड की हो सकती है, कोई व्हीकल्स की हो सकती है, कोई सिग्नल्स की हो सकती है, एंड यू हैव टू मैच दैट पिक्चर्स। और समटाइम यू विल आल्सो गेट एनी टाइप ऑफ वर्ड, और वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट फॉन्ट का वर्ड होता है, एंड इट कैन नॉट बी रीडेबल easily, but you have to read it and you have to type it so that it can recognize you as a human। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि एक प्रिवेंशन मेथड होता है। लाइक ही कैन प्रिवेंट यू कि आप कोई रोबोट नहीं है, या फिर आप कोई ऐसे इलीगल सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आपके जो है वो सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द प्रिवेंशन मेथड टू गेट प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग हैक्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बॉट्स। ओके, इसका शॉर्ट के लिए बता दूँ आप लोगों को कि ये नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर एडवर्टाइज़मेंट जो होती है वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर जो है नॉर्मली काम करते हैं। ये एक तरह से एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि कोई फेक सॉफ्टवेयर है, या फिर ऐसा है कि कोई कोई जैसे होता है ना कि आपको द एनी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड अप टू शो द थिंग रियल, वो आपको असली चीज़ शो करने के लिए करता है, एक ब्लफ देने के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर एडवर्टाइजमेंट फील्ड्स के अंदर नॉर्मली विच आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, खासकर वहाँ पर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स रैनसमवेयर। व्हाट इज अ रैनसमवेयर? ये भी एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के वक्तों में। लिटरली आज 2023 में तो ऑनवर्ड्स जो पीछे से चलता आ रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो है वो नॉर्मली यूज अप किए जाते हैं हैकर्स की तरफ से। तो रैनसमवेयर इज अ फॉर्म ऑफ मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स अ विक्टिम फाइल। सबसे पहले तो ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये भी एक मेलवेयर की टाइप है दैट इज यूज टू इनक्रिप्ट द विक्टिम्स फाइल, मतलब कि आपका डेटा को जो है वो उसका एक्सेस जो है वो स्टील कर लेते हैं। The attacker then demands a ransom from the victim to restore access to the data upon payment। इसमें होता है कि फिर जब आपका जब किसी भी XYZ चीज़ का जब आपका एक्सेस जो है वो हैकर के पास चला जाता है, उसके बाद जो है वो आपसे कुछ कीमत माँगते हैं। मतलब दे डिमांड यू एनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू देम सो दैट दे विल गोइंग टू रिमूव देयर एक्सेस टू योर सिस्टम। वरना फिर आपको ऑब्वियसली आसान लफ्ज़ों में कभी भी कोई चीज़ आपकी हैक हो जाती है, कोई फेसबुक नॉर्मल लोगों का हैक हो जाता है, कोई इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। तो ये एक तरह से कभी-कभी जो है वो रैनसमवेयर की भी एक तरह टाइप होती है कि जब आपका सिस्टम हैक हो जाए, आपका कोई भी एरिया हैक हो जाए, एंड देन द हैकर विल डिमांड्स यू एनी सॉर्ट ऑफ मनी कि वो पैसे दो और छुड़वा लो। तो ये होता है रैनसमवेयर। मगर कभी-कभी हैकर्स जो है दे डोंट यूज्ड they don't hack or they don't steal your data just for the money। They also used to make your profile, or they will also used uh, your data to blackmail you। तो बहुत सारे जो है वो रीजंस हो सकते हैं, मगर ये भी एक तरह से आजकल हो रहा है कि पैसे मांगते हैं। जो भी अटैकर या जो भी हैकर होता है वो पैसे मांगता है, एंड देन दे विल लीव योर एक्सेस ऑफ योर एनी सॉर्ट ऑफ एरिया। कोई भी होता है, चाहे कोई ईमेल आईडी हो जाए, चाहे फेसबुक अकाउंट हो जाए, चाहे आपका बैंक अकाउंट भी कभी-कभी हो सकता है। तो ये इसलिए जब पैसे माँगते हैं, सो दैट्स मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ रैनसमवेयर।
यूजर्स आर शोन इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू पे अ फी टू गेट द डिक्रिप्शन की। ऑब्वियसली वो पूरा जो है वो उनको प्रोसेस बताते हैं कि आप किस तरह जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करें एंड देन दे विल गोइंग टू गिव यू द डिक्रिप्शन की, और आपने इजीली उसको कंट्रोल को डिक्रिप्ट कर ले। ओके, so it is a part of a ransomware which is also a very important part in the type of malware. Okay, तो कहने का मतलब ये है आसान लफ्जों में कि चाहे एडवेयर हो, चाहे बॉट्स हो, चाहे रैंसमवेयर हो, ये हर एक तरह का यू कैन से हैकिंग टेक्निक है, हैकिंग टूल है, जो कि तरीके हैं, नॉर्मली वेज है कि किस किस तरीके से आपका सिस्टम हैक हो जाता है। और जब आपका इस तरह हो जाए तो आपको उस वक्त क्या रिएक्ट करना चाहिए, हमें एक्चुअली ये आप लोगों को समझाना है कि समटाइम्स द पीपल आर सो मच कंफ्यूज, और वो कभी कभी इतना घबरा जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। सो इसीलिए आई जस्ट वांट टू मेक यू ऑल अवेयर, लाइक इफ यू विल अगर आप इस तरह की सिचुएशंस को जब आप फेस करें, सो व्हाट यू हैव टू डी हाउ यू हैव टू डील विद these type of situation. Okay, I hope the ransomware bots and adwares and malware, so these all are clear to you all. If you have cleared, so tell me in the comment box and write any sort of text so that I can know कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है. You can write any noted, understood, any type of message so that I can know कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है. Okay. नाउ यू हैव द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम द रैंसमवेयर। अच्छा, रैंसमवेयर से भी इसकी भी बचने के लिए बहुत सारी प्रिवेंशन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप ऑल योर डेटा, सबसे अच्छा सिर्फ रैंसमवेयर की नहीं, बाकी भी अगर आप कहीं आप देख लें किसी भी और हैकिंग टेक्निक को, तो सबसे कॉमन चीज़ तो ये है कि अपने डेटा का ना बैकअप रखा करें। आई नो कि इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरेज चली जाती है कभी कभी, मगर आप जैसे व्हाट्सएप के टेक्स्ट होते हैं, चाहे आप फेसबुक अकाउंट्स के जितने भी लॉगिन हैं, या फिर आप जहाँ जहाँ जिस भी एरिया में आपने लॉगिन किया हुआ है, सो आप वहाँ के डेटा का बैकअप ज़रूर रखा करें। सो दैट कि अगर कभी भी आपका कोई डेटा स्टील होता है या एक्सेस शेयर हो जाता है, तो आपके डेटा का बैकअप हो। ओके, इससे इससे ये होता है कि आपको फिर वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता आपके डेटा को जो है वो लेकर। यू हैव अ बैकअप, देन यू विल बी सेफ। सेकेंडली, अपडेट, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। बिल्कुल ये ऐसा है कि कभी कभी लोग जो है वो पुराने वर्जन्स को यूज कर रहे होते हैं, अपने डेटा को जो है वो अपडेट नहीं करते। आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जब कोई अपडेटेड वर्जन आता है किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसमें ये होता है कि अपडेट का मतलब ये है कि कोई चीज़ और जो है वो फिक्स्ड होकर आती है, या फिर और उसका जो है वो रिलायंस वर्जन आता है और रिलायबल आता है, और मतलब कह सकते हैं कि सेफ वर्जन आता है। मगर लोग जो है वो अपनी स्टोरेज बचाने के लिए, या लोगों को इतना टाइम नहीं होता, या लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उस चीज़ को अपडेट भी करना होता है। एक छोटी-सी एप्लीकेशन से लेकर एक पूरा डेस्कटॉप सिस्टम को अपडेट लाज़मी करना चाहिए, सो दैट यू विल बी वेल सेफ फ्रॉम दीज़ टाइप्स ऑफ हैकिंग टेक्निक्स, ताकि फिर आप इन सब से बचे रहें। एक और चीज़ बताना है आप लोगों को, यू ऑल हैव सीन दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट, कि कभी भी आप देखते हैं कि अपडेटेड चीज़ों में जब लिखा आता है ना कि सम बग फिक्सेस, बग फिक्स का क्या मतलब होता है? बग्स क्या होते हैं? बग्स होते हैं कोई भी माइनर से माइनर इश्यू, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक गेम खेल रहे हैं और आपको वहाँ गेम के बीच में आपका गेम लैग हो जाता है। योर इंटरनेट सिग्नल्स आर कमिंग प्रॉपर्ली और आपका हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मगर गेम के अंदर ही कोई ग्लिच आ जाता है, फॉर एग्जांपल ग्लिच एक सही वर्ड है, ग्लिच आ जाता है। सो दैट वुड बी फिक्स्ड विद द नेम ऑफ बग। तो बग फिक्स का मतलब ये होता है कि अब उसपे ग्लिचेस कम होंगे, वो और ज़्यादा जो है वो एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी अगर वो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा स्मूथ चलेगी, एंड दे विल शो लेस ग्लिचेस, और कम गलतियाँ जो है वो उस एप्लीकेशन की तरफ से होंगी। सही है? सो यू हैव टू मेक इट अपडेट, ताकि फिर आप लोग जो है वो उसका जो है वो अपडेटेड वर्ज़न को एक्सपीरियंस कर सकें, और ज़्यादा जो है वो रिलायबल वर्ज़न होता है, एंड ऑल्सो आप फिर उसमें सेफ्टी भी इंश्योर कर सकते हैं अपने सिस्टम की। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका पूरा सिस्टम हो, you have to update your system till up to date. Third is security tools. Install all security tools and software. Obviously anti malware softwares जो बहुत सारे आ गए, anti hacking software, anti virus software, तो इस तरह के जब सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी टूल्स। सो इफ यू विल गो टू इंस्टॉल दैट इन योर सिस्टम, सो योर सिस्टम वुड those security tools will work as a barrier, and they will hold a system to not getting hacked or not sharing any control illegally to the hacker. So you have to install these security tools as well. कोई इतना मसला नहीं होता, आप easily सर्च करें। हम अपना जो लास्ट सेशन में है ना, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इफ यू ऑल विल गोइंग टू टेल मी कि अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि हाउ टू इंस्टॉल सिक्योरिटी टूल्स, तो इसको हम ऐड अप कर लेंगे अपने लास्ट स्पेशल सेशन के अंदर। ओके, देन यू हैव द
डू नॉट क्लिक सस्पिशियस लिंक्स एंड फाइल। डेफिनेटली ये तो मैं आपको पहले सेशन से बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले से सेशन लिया है मेरा, सो यू ऑल विल अवेयर कि आपने कोई अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, कोई अननोन ईमेल नहीं ओपन करनी, किसी भी किस्म की अननोन एडवर्टाइजमेंट पे रिएक्ट नहीं करना, ना उसको ओपन करना, उस पर क्लिक करना, कुछ भी नहीं करना। और ना कि आप लोगों ने किसी किस्म का अननोन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना, बिकॉज दीज ऑल आर समहाउ लिंक्ड विद योर सिस्टम। एंड उसमें ये होता है कि फिर हैकर आपका इलीगली डेटा जो है वो हैक भी कर लेता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सोशल इंजीनियरिंग। ओके, ये बड़ा न्यू टर्म होगा आप लोगों के लिए, सोशल इंजीनियरिंग, मगर ये भी जो है वो हमारे एक कोर्स का पार्ट है, एंड दिस इज आल्सो बीइंग वेरी मच पॉपुलर अमंग नाउअडेज। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ पूछना कि पीछे के जितने भी एरिया सब समझ में आ गए आप लोगों को, वो पूरा मेलवेयर का साइट टाइप्स और प्रिवेंशन। सो काइंडली show me any text in your write any text in the comment box। लिखें आप, बताएं मुझे कि कोई चीज़ इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, नोटेड, नोटेड। बस ये 2-3 स्टूडेंट ही है जो हमेशा बोलते हैं नहीं नहीं आया है, अभी आए दो और क्या है, नोटेड। ओके, सो काइंडली इस तरह अपनी प्रेजेंस शो करा करें ताकि फिर बाद में आप लोगों को जो है वो जरा पता भी चले कि आप लोगों को समझ में आ रही है। एंड देन वी व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट कोर्सेज, और जब हम नया एडिशन लेकर आए अपने इस टेक्नोलाइट्रेट का, टेक टूर का, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप उसमें पार्ट बने, और फिर आप भी जो है वो नए बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर आप बताएं कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं। एंड अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इसको प्रैक्टिकली जो है वो इसको करने की कोशिश करें। Okay, now discussing about social engineering, like it is a term used for a broad range of malicious activities accomplished through human interaction। Obviously इसमें ये होता है कि अब इसमें कुछ अब जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट नहीं करते, मगर ये एक ब्रॉड रेंज के अंदर, एक ज़्यादा तादाद के अंदर इस तरह से जो है वो अननोन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सिस्टम के अंदर के ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। जिस टाइम पर वो इंस्टॉल होता है उसी टाइम पर जो है वो आपका कंप्यूटर मैल फंक्शन शो करता है, किसी एक पार्ट के अंदर नहीं बल्कि हर जगह पर। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, आपका जो है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका जो है वो यू कैन से प्रोग्राम्स हो गए, फाइल्स हो गई, वो हर चीज़ में जो है वो मैल फंक्शन शो करेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सो उसमें ये होता है कि कोई ह्यूमन की ही वो इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर डूइंग दिस ऑल थिंग। इसमें ज़्यादातर जो है वो कंप्यूटर मतलब अपने आप से नहीं करता। डेफिनिटली देयर आर सम ह्यूमन व्हिच आर यू कैन से आपका जो दुश्मन हो सकता है, या फिर आप पे कोई यू कैन से इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ हैकिंग हैकर। तो इसमें ये होता है कि अब आपके सिस्टम को जो है वो पूरी तरीके से वो कैप्चर कर लेता है, और किसी एक पार्ट को नहीं बल्कि हर चीज़ आपकी जो है वो मैल फंक्शन शो कर रही होती है। ओके, it was a physiological manipulation to trick users into making security mistakes or giving away sensitive information। Definitely जब आपका पूरा सिस्टम मैल फंक्शन शो करेगा, आप घबरा जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगी लाइक हाउ यू हैव टू डील विद इट। आप लोगों को क्या पता, ये इतने बड़े पैमाने पे चल जाता है कि आप लोगों को फेक कॉल्स आना शुरू होती है, यू विल रिसीविंग द टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल। तो ये पूरा जो है वो एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसको आप एक तरह से ऐसा समझ लें कि एक हैकर है, उसका पूरा जो है वो एक सिस्टम उसने अपना एक पूरा रूम बनाया हुआ है, उसमें उसके हेवीली लोडेड कंप्यूटर्स हैं और उनके मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं, और वहाँ पर बैठकर वो सिर्फ आपकी ही पर्टिकुलर प्रोफाइल को जो है वो यूज़ कर रहा है। तो उसमें नॉर्मली फिर ऑब्वियसली वो जब फोकस्ड होगा आपकी ही प्रोफाइल के ऊपर, आपके ही सिस्टम के ऊपर, सो ही कैन डू एनीथिंग। वो कहीं पे भी किसी भी एरिया को जो है वो यूज़ अप कर सकता है, और आपको किसी भी हद तक ब्लैकमेल कर सकता है, या जो भी उसका पर्पस है वो कर सकता है। इससे ये होता है कि कभी-कभी आप सिक्योरिटी मिस्टेक्स कर लेते हैं। द हैकर विल गोइंग टू शो यू एनी सॉर्ट ऑफ एरिया कि आप इस पे क्लिक करें तो आपका सिस्टम बच सकता है, या इस पे फलाने लिंक पर क्लिक करें तो आप जो है वो सिक्योरिटी जो है वो अनेबल कर सकते हैं। आप कोई भी जो है वो अपनी अपना जो है क्या कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल्स के जो एक्सेस को सेव कर सकते हैं, या अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट। आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग उस पे क्लिक करते हैं कि हाँ, मुझे अपने सिस्टम को बचाना है, या मुझे अपने डेटा को स्टोर होने से रोकना है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो एक तरह से प्लांटेड एरियाज़ होते हैं, वो प्लांटेड टेक्स्ट होते हैं, वो एक्चुअली ओरिजिनल में ओरिजिनली नहीं होते। आपके जितने भी
एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर है वो सब ब्लॉक हो चुके होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। और अब आपको सिर्फ जो है अपने सिस्टम को बचाने के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसकी प्रिवेंशन क्या होगी, इसकी इसकी प्रिवेंशन है, हर चीज़ की जो है वो एक प्रिवेंशन है। तो इसमें मगर आपको जो है वो कम से कम एरियाज़ को ओपन करें और कम से कम जो है वो अपने सिस्टम का रिएक्शन शो करें। क्योंकि जैसे-जैसे आप क्लिक करते रहेंगे, जैसे-जैसे आप उल्टी-सीधी चीज़ें हाथ पे मारते रहेंगे सिस्टम के ऊपर, सो डेफिनिटली दोज़ एरियाज़ आर बीइंग कैप्चर्ड बाय द हैकर। तो जैसे-जैसे आप रिएक्ट करते रहेंगे वैसे-वैसे वो उसके अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम को पूरी तरीके से जो है हैक कर लेगा। आप लोग रिएक्शन शो मत करें। ओके? सो सोशल इंजीनियरिंग को यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वी विल हैव द एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अच्छा, ये होता कैसे है? इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ मैंने मेंशन की हुई है। इट रेंज फ्रॉम फिशिंग अटैक्स वेयर विक्टिम्स आर ट्रिक्ड इनटू प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। डेफिनिटली ये फिशिंग का पार्ट है। फिशिंग हम लोग लास्ट 2 सेशंस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिशिंग भी एक वायरस का सॉफ्ट वायरस का टाइप है, जिसमें जो है वो नॉर्मली होता है कि कुछ इस तरह से ट्रिक की जाती है या इस तरीके से बोगस वेबसाइट्स आपके सामने शो की जाती है, जिसमें आप जो है जब फिल आउट करते हो उसको, या आप जो है वो कुछ ऐसे क्लिक्स कर लेते हैं जिससे आपकी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाती है हैकर के साथ। लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है? अब आपने जो है वो किसी फलाना बैंक को जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है अपने किसी दोस्त वगैरह को, तो ऑब्वियसली आपने जो है वो पोर्टल खोला। अब आपने वहाँ पे सारी अपनी बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी और आपने उसको जो है वो शेयर कर दिया। तो अब आपको नहीं पता कि वो वेबसाइट फेक थी या वो वेबसाइट जो है वो प्लांटेड वेबसाइट थी, और उसपे जितना भी आपने अपना जो कि डिटेल्स दी है, वो अब आपकी शेयर सही जगह पे हुई भी है या फिर कहीं और तो चली गई, तो इसमें नॉर्मली जो है वो फिशिंग का खतरा रहता है। ओके? Phishing attacks where an urgent and official sounding voicemail convinces victim to act quickly or suffer serve consequences, or physical delegating attacks that rely on trust to gain। डेफिनेटली कभी कभी इस तरह की व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, कभी कभी वो वॉइस नोट्स आएंगे, कभी कभी जो है वो आपको जो है वो MP3 मतलब ऑब्वियसली वीडियो ऑडियो फॉर्म के अंदर आपको ईमेल्स मिलेंगी जिससे आपको बताएंगे कि आप इस फलाना वेबसाइट पे जाकर आप वो फॉर्म भर दें तो आपका ये हो जाएगा, ये फलाना वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें तो वहाँ पर आप जो है वो कोई कॉन्टेस्ट है या वहाँ पर आपका जो है वो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा फॉर्म है तो उसको आप भर दें तो आपको फलाना जगह पे मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके के फेक होती है सब ऑडियोज, ये कोई ओरिजिनल नहीं होती। और इसमें ये होता है कि इतनी वो एक्चुअली कह सकते हैं कि इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो आप लोगों को अपना उन पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है आप लोगों को कि नहीं यार ये लोग सही बोल रहे हैं, ऐसा होता होगा। ठीक है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दे विल गोइंग टू शेयर यू द प्लांटेड रिव्यूज़, वो शेयर करते हैं कि देखिए ये लोगों के रिव्यूज़ हैं, लोगों ने इसको सही-सही बोला है, लोगों ने ये किया है। पर जब तक आप उस वेबसाइट से या उस ऑडियो से ऑथेंटिसिटी जब तक आप गेन ना कर लेना कि नहीं ये ऑथेंटिक है या मैंने इसके बारे में किसी से सुना हुआ भी है या ये पॉपुलर वेबसाइट है या पॉपुलर एरिया है कि हाँ, लोग इसको यूज़ करते हैं, तब तक आप अपना कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ आप शेयर ना करें। ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं पर भी अपना जो है वो ऑनलाइन चीज़ें शेयर ना करें, नहीं, आप ज़रूर करें। आप जो है वो ऑनलाइन जितनी भी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती है, सर्विसेज़ मिलती है, आप उसको अवेल करें। बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप किस वेबसाइट पर क्या चीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना मँगाने के लिए कोई ऑनलाइन जो है वो आपने कोई वेबसाइट ओपन की है वेयर यू हैव टू ऑर्डर अ फूड, मगर अब वो वेबसाइट जो है वो खाने की नहीं है, वो एक प्लानेड वेबसाइट है जो कि उसी नाम से है, मगर डेफिनिटली वो कोई और चीज़ है, मतलब वो फेक है। तो वो पता चल जाता है, जैसे आप ओपन करते हैं आपको उसका प्रीफेस देख के पता चल जाएगा कि नहीं ये तो कुछ चेंजेस लग रही है इसके अंदर। तो डोंट रिएक्ट ऑन दोज़ वेबसाइट्स प्लीज़, ओके? वो एक तरह से फिशिंग का पार्ट है, वो आपका सारा जो है वो डेटा वहाँ से फिश आउट कर लेते हैं बाय जस्ट शेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म एंड दे आस्क यू टू फिल इट एंड दे यू शेयर ऑल योर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल थिंग देयर एंड देन दे विल steal your data। ओके, देन फिजिकली सिक्योरिटी ब्रेच क्रिएटेड बाय द हैकर्स, प्रीटेक्स्ट कॉलिंग, ये वही चीज़ है, हर तरीके से आपको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हर एरिया को यूज़ करेंगे, ईमेल को यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप्स को यूज़ करेंगे, फेसबुक मैसेंजर को यूज़ करेंगे, आपको कॉल्स करेंगे, आप लोगों को जो है वो एसएमएस से मैसेजेस आएंगे, आप लोगों को जो है वो ऑडियोज़ मिलेंगी, पर हर तरीके से वो इस तरह के वेबसाइट के होम पेजेस शेयर करेंगे, फेसबुक के पेजेस के हमारा फलाना जगह पर ये पेज है या हमारी ये वेबसाइट है, हमारा ये है, ये जो भी है, अपने एड्स शेयर करेंगे, तो डोंट रिएक्ट ऑन दोज़ वेबसाइट। आप उनको बोलें कि सिर्फ़ वो आप ही को शेयर कर रहे हैं। आप उनको बोले ना कि भई आप मैं कौन हूँ? आप व्हाई यू आर शेयरिंग ओनली मी? आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स पर लगाएँ, आप अपने डिस्प्ले करें, लोगों को मार्केटिंग करें। व्हाई यू आर शेयरिंग दोज़ थिंग्स टू ओनली मी?
तो इस तरीके से जब आप इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप उसको देख के वो ना खुश ना हो जाएँ कि भाई अच्छी फैसिलिटी है इसको ले लो, नो, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट ऑल सो दैट यू विल गोइंग टू सेव योर डेटा। ऑब्वियसली ये सब आपका डेटा स्टील करने की कोशिश होती है, तो इसीलिए जो है वो हर जगह पर हर इंटरनेट की फैसिलिटी को अवेल नहीं करनी होती, कहीं-कहीं पर देखना भी होता है कि कोई फेक तो नहीं है ये, मेरा डेटा तो इससे खतरे में नहीं पड़ जाएगा। ओके? नाउ यू विल हैव द प्रिवेंशंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो इसकी प्रिवेंशंस क्या है? लेट्स डिस्कस द प्रिवेंशंस। डोंट ओपन ईमेल्स एंड अटैचमेंट फ्रॉम सस्पिशियस सोर्सेस। डेफिनिटली कोई अननोन सोर्स से चीज़ आए, ईमेल आए, कुछ भी आए, ना खोलो। ट्रैश में डालो, डायरेक्ट ट्रैश में। मतलब कि बल्कि ट्रैश में मत डालो, उसको रिएक्ट ही मत करो। वो आप खुद देखिएगा, खुद नोटिस कीजिएगा, वो 1-2 दिन बाद वो खुद ही डिलीट हो चुकी होगी, डेफिनिटली। ओके? यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डेफिनिटली एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, आप उसको इंस्टॉल करें, आप अपने सिस्टम के अंदर उसको डाउनलोड करें, उसको आप ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होती है, आप इसको जो है वो अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड करके रखें सो दैट इट कैन ऑथेंटिकेट बाय इटसेल्फ कि वो फलाना जो है वो भी वेबसाइट है वो ऑथेंटिकेट है भी या नहीं। ओके, देन यू विल हैव द बी वेरी ऑफ टेम्पटिंग ऑफर्स। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की ऑफर सुनते हैं कि हम आपको जो है वो 50% डिस्काउंट दे देंगे, या आप हम आपको ये दे देंगे, या इतना परसेंट डिस्काउंट है, या इतनी डेट तक ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, आपको जो है वो कैश बैक मिलेगा, या इस तरह का जो भी होता है, तो डेफिनेटली अगर वो सब चीज़ें का एक अननोन सोर्स से आप लोगों को मिल रही है तो डेफिनेटली इग्नोर दैट एज वेल। कीप योर एंटीवायरस एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। डेफिनेटली अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर्स, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोगों को एक तरह से बैरियर का काम करते हैं फॉर कीपिंग योर डेटा टू बी स्टोर सेफ, तो इन सबको अपडेट रखें। ओके, तो यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप अगर यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग से बचे रहेंगे, बल्कि इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, चाहे वो डीडोस अटैक हो, चाहे डॉस अटैक हो, चाहे वायरसेस का अटैक हो, चाहे कोई भी इस तरह की फिशिंग अटैक या फार्मिंग अटैक, तो इस सब से आप लोग जो है सेफ रहेंगे। बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करनी है। कोई बड़ा कोई ऐसा नहीं करना कि अपने कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल कर लें कि लोड बढ़ जाए, या कुछ इतना खतरनाक कोई बड़ा कोई पहाड़ जैसी कोई चीज़ इंस्टॉल करें। नहीं, आपको सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। डेटा का बैकअप रखना है, अपने हर सिस्टम को अपडेट रखना है, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखना है, किसी भी अननोन सोर्स पर क्लिक नहीं करना, चाहे ईमेल हो, चाहे वेबसाइट हो। बस ये 3-4 चीज़ें करनी है, आप सेफ रहेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेरी है, क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें कमेंट सेक्शन में सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। बग्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर आपको बता दूँ, बग्स आर लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, अ बग इज़ अ फ्लॉ प्रोड्यूस एन अनडिजायर्ड आउटकम। ये वही चीज़ है, को ग्लिच आ जाता है, कोई फ्लॉ आ जाता है आपके सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई सिस्टम का कोई पार्ट हो। अगर वहाँ पर कोई ग्लिच आ जाता है या कोई फ्लॉ आता है या कोई मैल फंक्शन कर रहा है आपका सिस्टम, सो इन दैट केस यू हैव टू फिक्स द बग्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ कभी-कभी जो है वो ज़्यादा स्टोरेज की वजह से कुछ ग्लिचेस आना शुरू हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, सो यू जस्ट हैव टू फिक्स दोज़ bugs. These flaws are usually the result of human error and typically exist in the source code or compiler of a program. अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड ओपन करें। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये डेफिनेटली ये उन लोगों को पता होगा जो प्रोग्रामर्स हैं, आप लोगों को तो खैर इसके बारे में नहीं पता होगा, मगर इन बग्स को फिक्स करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मतलब है, ये आपकी तरफ से ही एरर होता है, ह्यूमन एरर ही होता है, कोई हैकिंग का कोई चक्कर नहीं होता है इसके अंदर, और इसको ठीक करने के लिए यू हैव टू ओपन द सोर्स कोड ऑफ दैट प्रोग्राम। वहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स आएँगे और वहाँ पर आपको जो है वो वहाँ पे इन फ्लॉज़ को ठीक करना होता है, मगर ये ऑब्वियसली प्रोग्रामर कर सकता है, आप लोगों के पास बस की बात नहीं है। सो इसके लिए तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि डोंट ओवर डाउनलोड और डोंट ओवर रिएक्ट ऑन द वेबसाइट्स और ऑन द सॉफ्टवेयर्स। एक सॉफ्टवेयर को उसकी हद तक रखें, 6 चीज़ें एक साथ ना खोल लिया करें। वो कहते हैं ना पहले के लोग कि बेटा स्टोरेज कम कर लो, मतलब लोग इस तरह कहते हैं, नॉर्मली आपके पेरेंट्स ही कहते होंगे, जो दोज़ आर एक्चुअली कि जो पहले कि मतलब सेंचुरी से ताल्लुक रखते हैं, जो मतलब पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो नॉर्मली यही उनके मशवरे होते हैं कि स्टोरेज कम कर लो, या फिर अपने कोई ऐप्स को मतलब डिलीट कर दो। तो इस तरह की भी जो है वो कहीं-कहीं पर इश्यूज़ आते हैं, तो उनका रिज़ॉल्व करने का तरीका यही होता है कि अपने स्टोरेज को कम से कम रखें, अपनी ड्राइव्स को यूज़ करें, गूगल ड्राइव्स को, वहाँ पर चीज़ों को इंस्टॉल रखें, अपनी फ़ोन मेमोरी को सेव करके रखें। जहाँ ज़्यादा डेटा होगा, जहाँ ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे, जहाँ ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, वहाँ डेफ़िनेटली हैकिंग का खतरा होगा। ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए ड्राइव्स बनाई हुई गूगल ने आप लोगों के लिए, वहाँ पर इंस्टॉल करें, या अपना जो है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करें अपनी सिस्टम की। बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस अपनी चीज़ों को जो है फिक्स फिक्स करके रखा करें।
Okay, minor bugs only slightly affect a program's behavior and as a result can go for long periods of time before being discovered. वही चीज़ है, पहले माइनर बग्स जो आते थे प्रोग्राम से, मगर अब मेजर बग्स आते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली लोग जो है वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उस ऐप को वो अपडेट करते हैं सो दैट दे कैन फिक्स दोज बग्स. एंड नॉर्मली द बग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड बाय द कंपनीज by reviewing the फीडबैक ऑफ द पीपल. लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही वो फिर बग्स चेक करते हैं कि भाई कुछ फ्लॉज तो नहीं है, तो फिर वो उसको दे विल फिक्स इट बाय अपडेटिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. तो इसीलिए कहते हैं आप भी उसको फिर अपडेट करें ताकि फिर आपको भी इस तरह के मैल फंक्शंस को जो है वो डील ना करें उनसे. ओके, आई होप द बग्स आर ऑल्सो बी क्लियर टू यू ऑल. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, द सिस्टम्स ऑफ मेलवेयर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अब तक के कोर्स का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है. सिम्टम्स कि आप जो है वो किन किन यू कैन से एरियाज जब आप डील करते हैं इन जो मैं बुलेट्स में पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब आप इन सिचुएशन से डील करते हैं तो एक्चुअली यू कैन एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ मेलवेयर. ठीक है? तो ये आप इसको समझें, सीखें, अपने पास कॉपी भी कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर ही देंगे, मगर फिर भी इनको अपने पास लिख लें, इनको देख लें अब, ताकि बाद में जो है फिर आपको किसी को बताना पड़े या कोई भी आपको पास कोई कोई वो लेकर आए, कोई प्रॉब्लम लेकर आए कि यार मेरा सिस्टम में ऐसा हो रहा है, तो आपको पता हो कि यार इसको इस तरह डील करो. सही है? ये छोटी-मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस थिंग इन आवर कोर्स एज़ वेल. सो बट जस्ट स्टार्टिंग द सिम्पटम्स ऑफ मेलवेयर, उससे पहले आप ज़रा मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर कोई क्वेरी तो नहीं है, ताकि फिर अभी ही उसका हम लोग उससे डील कर लें क्वेरीज से. फिर हम मेलवेयर सिम्टम्स को और फिर उसकी प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड लास्ट स्लाइड. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. ओके, एक्नॉलेज्ड. अब हमेशा एक्नॉलेज नोटेड ना लिखे, कोई क्वेरी भी ले आए, जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, नो क्वेश्चन येट. चले, ओके, कोई बात नहीं, पर मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है, पर अगर है तो पूछ लें, बिकॉज कंडीशन आसान नहीं है. यू हैव टू रिएक्ट इट. आप लोगों को उसको कंडीशन को समझना पड़ेगा, जो कि हम होम टास्क में आप लोगों को देंगे, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. और जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे, जितना ज़्यादा रीजनिंग करेंगे उन सिचुएशंस की, उस कंडीशंस की, उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो परसेंटेज मिलेगी उस पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर. आगे मैं डिस्कस करता हूँ फिर इसका पूरा क्राइटेरिया, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेलवेयर की सिम्टम्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the symptoms of malware? Increase CPU usage. सबसे पहले अगर आप मेलवेयर, पहले बात तो मेलवेयर एक हैकिंग टाइप है, तो अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, आपके सीपीयू के यूसेज बढ़ जाती है. कि मतलब आप उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने सीपीयू को, आप जैसे एक एक्स वाई ज़ी कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी एक पार्ट है आपकी सिस्टम का, और यू आर नॉट यूजिंग इट, बस आप उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ ऐसा शो होती है कि वो यूज्ड अप हुई हुई है. तो ये एक तरह से पहली सिम्टम है मेलवेयर की, कि आपकी सीपीयू की यूसेज खुद ब खुद बढ़ रही है. ओके, सो यू हैव टू सी इट प्रॉपर्ली, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये मेलवेयर की माइनर सिम्टम हो सकती है. देन यू हैव द स्लो कंप्यूटर और वेब ब्राउजर स्पीड्स. ये बहुत कॉमन है, आपका सिस्टम स्लो हो जाए, आपका सिस्टम सही तरीके से रिएक्ट ना कर रहा हो, आपने वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट का टाइटल यू हैव टाइप्ड इट एंड इट विल टेक टाइम टू शो यू द वेब सर्चेस. आपका टाइम लगा रही हो कोई वेबसाइट ओपन करने में, या कोई भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, कोई डाउनलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, that takes time to open it, or your system is lacking a lot, it is showing glitches, it is behaving like a malfunctions, or they are not appropriate, they are not working appropriately, the speed is being slow. तो ये सब जो है वो causes हो सकती है, symptoms हो सकते हैं malware के. ओके, प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है. आपका जो है वो वाईफाई सिग्नल्स, आपकी इंटरनेट की केबल, दीज ऑल आर वर्किंग प्रॉपर्ली, बट देन इवन आप लोगों के सिग्नल्स जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं पहुंच पा रहे. उसका सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि ये एक तरह से मेलवेयर की सिस्टम है, कि वो आपके इंटरनेट के सिग्नल्स को कैच नहीं कर पा रही है. द केबल आर वर्किंग प्रॉपर्ली, हर चीज प्रॉपर्ली अटैच्ड है, हर चीज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, बट देन ऑल्सो your system is not catching the signals of internet, so you have to check it, because this can also be a symptom of malware. Freezing or crashing.
आपने कोई वेबसाइट ओपन किया एंड इट विल गोइंग टू शो यू द 404। समटाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जब कोई वेबसाइट खोलते हैं, अनअवेलेबल पेज, इनवैलिड आईडी, और 404 पेज नॉट फाउंड, पेज अनअवेलेबल। तो इन सिचुएशन के अंदर कभी कभी ये मेलवेयर की टाइप हो सकती है, उसकी सिम्टम हो सकती है मेलवेयर की, कि वो आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट शो नहीं कर रहा। सो इसमें ये होता है कि योर सिस्टम और दैट particular website is getting crashed or freezed. The hacker have not allowed to show that website to you. तो इसीलिए फिर वो इस तरह के 404 कोड लिखे आते हैं और लिखा आता है कि इनवैलिड आईडी, और आप बार बार उसको रिफ्रेश करते हैं मगर वो ओपन नहीं हो रही होती। तो इसका ये आसान हल है कि आप उसको ओपन ना करें। अपना ब्राउजर चेंज करें आप, या अपनी आईडी चेंज करें आप, इसको आप ओपन करने की कोशिश करें। अगर तब भी ना ओपन हो, देन यू हैव टू वर्क इट ऑन। आप फिर मेलवेयर की प्रिवेंशन की तरफ जाएं, बिकॉज इट इज अ सिम्टम ऑफ मेलवेयर। मॉडिफाइड और डिलीटेड फाइल्स। अच्छा, अब आपकी कोई फाइल आपकी, आपने उसे फाइल आपने सेव की है। आपने कोई भी किसी किस्म की भी फॉर्मेट पे आपने फाइल सेव किया, इट कैन बी आइदर एनी स्लाइड, एनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और कोई भी होती है, आपने फाइल सेव कर ली। व्हेन यू ओपन इट, यू एक्सपीरियंस इज दैट कि वो फाइल जो है वो मॉडिफाइड हुई हुई है, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस हुई हुई है, या फिर वो डिलीट हो चुकी है। When you open it, it was showing that the file is deleted or the file cannot be opened. तो इस तरह के जब डायलॉग्स बॉक्स आप पढ़ते हैं, so definitely you have to check it out कि वो malware की ही कोई हरकत है, it is a symptom of malware, so that's why your file is being deleted or crushed. Unless आपके सिस्टम में कोई और यूज नहीं करता हो। कभी भी ऐसा भी तो होता है ना कि आपके सिस्टम को 3-4 लोग यूज कर रहे हैं, वो किसी ने डिलीट कर दी फाइल। नहीं, अगर आप अकेले आप खुद ही करते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपकी सिस्टम पे कोई भी चेंजेस आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप सही हैं। इट इज अ सिम्टम ऑफ मेलवेयर एंड यू हैव टू वर्किंग ऑन इट्स प्रिवेंशन। अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंज फाइल्स, प्रोग्राम्स और डेस्कटॉप आइकन। एक रात कंप्यूटर बंद करके सोए हैं, अगली सुबह उठे हैं, आपने वहां देखा है कोई अननोन सा जो है वो डेस्कटॉप पर आइकन आया हुआ है। ओके, आपने देख लिया। फिर आपने जो है वो मेन्यू बार ओपन किया एंड यू हैव सॉ व्हेन ऑल द प्रोग्राम्स आर शोइंग इन अ लिस्ट फॉर्म, तो वहां पे आपने देखा कि वो फलाना जो भी कोई भी अपना कह सकते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वो वहाँ पर इंस्टॉल्ड है एंड यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड इट। सो डेफिनेटली इट इज अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर सिम्टम्स के वो एक स्ट्रेंज फाइल, स्ट्रेंज सिस्टम का कोई पार्ट है जो कि खुद ब खुद इंस्टॉल हो चुका है। सो वो खुद ब खुद नहीं हुआ है, इट इज बीइंग डन बाय द हैकर एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेलवेयर। और अब ये मेजर सिम्टम्स है। ऊपर तक तो माइनर थी कि वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर रहा, और अपना फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो रही हैं, स्पीड स्लो हो गई है, क्रैशिंग हो रही है फाइल्स की, सिस्टम नहीं वर्क सही नहीं कर रहा, तो ये तो माइनर है। अब ये मेजर है कि खुद ब खुद कोई फाइल का इंस्टॉल हो जाना, इट इज नॉट अ ईजी थिंग। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। Program running, turning off, or reconfiguring themselves. Malware will often configure और टर्न ऑफ एंटीवायरस फायरवॉल प्रोग्राम। अच्छा, अब आपने हैकिंग जो है वो एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, फायरवॉल्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है। फायरवॉल इज एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर। प्रिवेंशन के लिए फायरवॉल्स बेस्ट है, उसको इंस्टॉल रखें अपने सिस्टम में, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। ओके, तो फायरवॉल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, इस तरह आपने एक दो और एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए एंड दे आर टर्न्ड ऑफ, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग योर सिस्टम, दे आर नॉट वर्किंग इट प्रॉपरली। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि द हैकर हैव डन समथिंग व्हिच इज नॉट मेक दोज सॉफ्टवेयर वर्किंग प्रॉपरली योर सिस्टम। तो ये एक बहुत ही मेजर सिम्टम है मेलवेयर की। ओके, अच्छा, ये सब ना एक और चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जब भी ऐसा होता है ना, तो आपका सिस्टम हैक नहीं हुआ होता, मतलब सॉरी तो आपका सिस्टम जो है वो हैक नहीं हुआ हुआ होता तब तक, जब तक आप जो है उसको देखकर घबरा जाते हैं। आप उल्टे सीधे क्लिक करना शुरू कर देते हैं, आप के मतलब कि मतलब आप खोल लें, कोई वेबसाइट खोल लें सॉरी, आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें, या आप जो है वो आप उसकी रिफ्रेश कर लें, मतलब आप जो है वो ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देते हैं आप लोग, एंड यू आर ओपनिंग द वेबसाइट के हम दोबारा इसको इंस्टॉल कर लें, या इस तरह जब करना शुरू कर लें, तब एक्चुअली आपका सिस्टम होता है हैक। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जो जो चीज़ आप ओपन कर रहे हैं वो ओरिजिनल है भी या वो फेक बनाया हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए उस टाइम पर
बिल्कुल आप कामली अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन उन सॉफ्टवेयर को चेक करें जो कि आपको एज़ अ एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको आप चेक करें। कोई और चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप करते हैं, चेक करते हैं, चलो मैं चेक करता हूँ कि मेरी फलाना चीज़ काम कर रही है, मैं चेक करता हूँ मेरा फलाना यूट्यूब काम कर रहा है, मेरा व्हाट्सएप काम कर रहा है, मेरा अपना जो वेब पेज है वो फलाना काम कर रहा है, मैं मेरा फेसबुक अकाउंट काम कर रहा है, नहीं ओपन ना करें। ये सब तो सब चल जाता है आप लोगों के। वो सब चीज़ें जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ों को वो ना कंट्रोल कर लेता है एक्सेस। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। स्ट्रेंज कंप्यूटर बिहेवियर, ये भी उसी का पार्ट है। स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहा होता है, मैल फंक्शन शो कर रहा होता है, खुद ही डेस्कटॉप वर्किंग हो रही होती है, मतलब सब कुछ मैजिकली वर्क हो रहा होता है। सो दिस एक्चुअली पार्ट ऑफ अ स्ट्रेंज बिहेवियर। Email messages being sent automatically and without user's knowledge. A friend receive a strange email from you that you did not send. सबसे लार्जेस्ट इसकी जो सिम्पटम होते हैं मैलवेयर के, ये होते हैं कि आपने कोई ईमेल टाइप ही नहीं किया और आपके फ्रेंड को वो ईमेल मिल गया। सही है? आपने कोई भी जो है वो मेल किसी फलाना कंपनी को या किसी फलाने इंस्टीट्यूट को लिखा ही नहीं है, वो वहाँ चला गया। एंड दे वर सेइंग दैट यू हैव टाइप्ड दिस मेल एंड वी हैव रिसीव्ड द मेल फ्रॉम योर आईडी। तो इस सिचुएशन के अंदर तो आपका सिस्टम पूरा गया। पूरा हैक हो चुका है और फिर आपको डेफ़िनेटली किसी एंटी हैकर ब बंदे ताल्लुक मतलब करना चाहिए, आपको रुजू होना चाहिए। दोज़ आर एक्चुअली द हैकिंग प्रोफेशनल्स, और जो एथिकल हैकिंग करते हैं, वो फिर आप लोगों के सिस्टम को जो है फिक्स करके देंगे, क्योंकि अब आपकी आईडीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ही कैन डू एनीथिंग। कहीं पे भी कोई पिक्चर्स अपलोड कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है, आपकी ब्लैकमेल कर सकता है आप लोगों को, किसी भी जो भी उसका पर्पस है, उसको वो परस्यू कर सकता है दे विल व्हेन ही विल गेट द एक्सेस ऑफ योर आईडीज़। ओके? सो ये कुछ सिम्पटम्स थी मैलवेयर की, माइनर से लेकर मेजर तक। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी सिम्पटम एक्सपीरियंस करते हैं, यू हैव टू चेक योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स व्हिच इज़ ऑफ फायरवॉल और एनी सॉर्ट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओके। आई होप ये मैलवेयर सिस्टम सिम्पटम्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इसको प्रैक्टिकली ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको देखिएगा कि ये जो है वो आपको डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आप लोगों को चीज़ समझ में आएगी कि कहीं न कहीं, कभी न कभी आप इसको इससे डील करें, तो आप उससे किस तरह जो है वो बच सकते हैं। सो नाउ वी हैव द प्रिवेंशन एंड द रिमूवल ऑफ मैलवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी सिस्टम अपना ये प्रेजेंटेशन का। सो काइंडली फोकस इट एज वेल कि अब मैलवेयर की प्रिवेंशन क्या है और उसकी रिमूवल क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि जो मैलवेयर है उसकी प्रिवेंशन ये होती है कि लाइक इंस्टॉल्ड एंड रन अप टू डेट एंटी मैलवेयर एंड फायरवॉल सॉफ्टवेयर। अप टू डेट रखें, अपडेट रखें, इंस्टॉल रखें एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर या फिर फायरवॉल सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर है जो कि मैलवेयर को रिमूव करते हैं। तो इन दोनों को जो है वो आप इसको अप टू डेट रखें, अगर इंस्टॉल या इंस्टॉल कर लें, या फिर अपडेट रखें इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कीप योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट विथ करंट vulnerability patches. These patches are often released to patch bugs or other security flaws that could be exploited by attackers. डेफिनेटली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होता है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, मगर जो अपडेटेड विंडोज है या अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सिस्टम, तो उसको अप टू डेट रखें, ताकि फिर जो कोई भी बग्स इशू आ रहे हो आपके सिस्टम में, तो वो ऑब्वियसली उसे डील कर ले, क्योंकि वो अपडेट होगा। अगर पुराना वर्जन रखेंगे तो फिर वो पुराना ही वर्जन रहेगा, तो फिर वो बग्स भी आएँगे, वो फ्लॉज़ भी आएँगे, मैल फंक्शंस भी करेगा कंप्यूटर आपका, तो वो फिर डेफिनिटली उससे डील नहीं कर पाएगा एंड इट गेट स्टक इन दैट बग ओनली। इसीलिए उसको अप टू डेट रखें। बी विजिलेंट व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स, प्रोग्राम, अटैचमेंट एक्सेट्रा। डाउनलोड दैट सीम्स स्ट्रेंज और आर फ्रॉम एन अनफैमिलियर सोर्स ऑफन कंटेन मैलवेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी अननोन प्रोग्राम को, अटैचमेंट्स को, आइदर इट कैन बी कुकीज़ एज़ वेल। कुकी होती है ना, जब आप देखते हैं कि जब आप कोई डेस्कटॉप पे कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, यू विल अपीयर अ सॉर्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स में लिखा होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द कुकी। डिक्लाइन करें, ना करें एक्सेप्ट। खामखा जो है वो नोटिफ़िकेशन आएँगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, और अटैचमेंट्स होगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर्स हो गए अननोन, ईमेल्स हो गए अननोन, उन पर ना उनको ओपन किया करें, ना उन्हें डाउनलोड किया करें। ये भी वो सारी जितनी भी सोर्सेज़ हैं वो सब मैलवेयर कंटेन करती हैं और फिर आपका सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है। कभी भी आप लोगों का सिस्टम बगैर आपकी इन्वॉल्वमेंट के हैक हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ आप लोग करते हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्लिक्स ऐसे करते हैं, ऐसी जगह रिएक्शन देते हैं जहाँ आपको रिएक्शन नहीं देना है, सो देन योर सिस्टम वुड बी इन्फेक्टेड बाय द हैकर, बाय द वायरसेस। तो इसलिए ना किया करें। ये सिर्फ 3 ही है मैलवेयर की प्रिवेंशन, सिर्फ इन 3 चीज़ों पे, इन 3-4 चीज़ों पे सिर्फ फोकस्ड रखें, अप टू डेट रखें, बैकअप रखें
एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल इंस्टॉल्ड रखें, सिस्टम को अपडेट रखें, बस और कुछ नहीं करना, आप हैकिंग से सेफ है। एंड हियर वी हैव एंडेड अप आवर कोर्स ऑफ साइबर सेफ। यहाँ पर हमारा जो कोर्स है साइबर सेफ का एंड होता है। एंड आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। दिस इज द सेकेंड लास्ट सेशन एंड हियर वी हैव एंडेड अप द 2 months कोर्स ऑफ साइबर सेफ। हम मुझे तो आप लोगों से लिटरली इस दफ़ा जो बैच था काफ़ी ज़्यादा यू कैन से सीरियस था। हमें बहुत सारे ईमेल्स पर मैसेजेस भी मिले, मतलब ईमेल्स भी मिले हम लोगों को कि आप लोग जो है वो चीज़ें पूछते रहते रहते थे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी तो हमारी टेक्निकल टीम से भी आप जो है वो यू आर बीइंग वर्किंग देयर एज़ वेल, आप उनसे भी जो है वो कॉन्टैक्ट में रहते थे एंड दे आई होप दे यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज़ वेल। मुझे बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक्स मिले, रिव्यूज़ मिले, पेजेस पर लाइक्स हमारे बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले इस तरह के दैट द पीपल आर लविंग आवर सेशंस। तो डेफिनिटली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट एडिशन इसके जब बनाएँगे तो इसको और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करेंगे, और ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन डेली लाइफ़ की और उस टाइम पर जो भी चीज़ें जो है वो ट्रेंड में होंगी या जो भी लर्निंग होगी उस टाइम की नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स की, तो डेफिनेटली उसको भी अपने कोर्सेज का पार्ट बनाएँगे एंड वी विल ट्राई टू टीच यू दैट lessons which are commonly used up in that time, और इजीली समझाएंगे इजी वर्ड्स में, कोई इतना लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन या इतनी लंबी चौड़ी जो है वो टर्म्स यूज नहीं करेंगे, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस इट और सो दैट यू विल लर्न इट एंड वर्क इट इन योर डेली लाइफ एज वेल। ओके, सो यहाँ पर हमारा साइबर सेफ एंड होता है। इन सब चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर इसको जो है वो इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे कंटेंट काउच हो, ग्राफिक टेस्टिक हो, माइक्रोसॉफ्ट आर्टिस्ट्री हो, साइबर सेफ हो, फ़िल्म मेकिंग का हो, जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सबका सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि आप उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ़ के अंदर एक्सपीरियंस करें, उसको यूज़ करें। सिर्फ़ लिखा-लिखाया या सिर्फ़ याद किया हुआ या फिर समझे ना उस चीज़ को, ठीक है? उसको यूज़ करें डेली लाइफ़ के अंदर, तभी आपके जो है वो पैसे वसूल होंगे, तभी आपकी नॉलेज वर्क करेगी। ओके? सो लेट्स लास्टली डिस्कस कर लेते हैं अब हमारा होम टास्क। दीज आर सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और इन सबको हम आपको ईमेल पर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के तौर पर भी आपको शेयर कर देंगे, और वी गोइंग टू शेयर यू थ्रू व्हाट्सएप एज वेल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। इन सब कंडीशनल स्टेटमेंट को जो है वो अभी सेशन के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड यू हैव टू सॉल्व इट और और सेपरेट यू कैन से वर्ड पेज या किसी भी फॉर्मेट पे आप भेज सकते हैं हमें, पीडीएफ के फॉर्म में भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म की तरह भेज सकते हैं हमें। यू कैन यूज ईमेल टू शेयर योर वर्क, और यू कैन आल्सो शेयर ऑन व्हाट्सएप एज वेल। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन इज लाइक what's supposed to be done by the user for protecting their data being hacked through Wi-Fi। Wi-Fi के थ्रू आपका डेटा जब हैक हो जाता है यूजर का, तो उसको क्या करना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। Jack received a proposal through email that contained the text "I love you" from an unknown mail ID. What's supposed to be done by Jack now? ये एक तरह से ईमेल के थ्रू जो हमने पढ़ा था सेशन के अंदर के मेल्स के थ्रू जो टेक्स्ट आते हैं, एंड दे यूज टू यू कैन से रीड दोस टेक्स्ट, और फिर क्या होता है, सो आपको जो है वो यहाँ पर उसका आंसर देना है। यहाँ पर आपको अपनी रीजनिंग करनी है, और जितना ज़्यादा डीपली आंसर करेंगे, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको गूगल में भी नहीं मिलेंगी, ये हमने खुद बनाई है अपने स्कोर से रिलेटेड। हाँ, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग जाके देखें दोबारा से, या फिर अगर आपको पता है, आई होप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है। पता होगा तो अच्छी बात है, वरना फिर रिकॉर्डिंग दोबारा रिव्यू करनी पड़ेगी, और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस कमिंग वीक पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को ये सबमिट करवाना है। ओके, What steps should be taken by a user if he or she receives an unknown link or an unknown website? ये तो बहुत कॉमन है, ये तो मैं पूरे सेशन के अंदर हम लोग चीख चीख के बताते रहे इस चीज़ को, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। What happen if a user reacts on the ad displayed by the website on its preface? अभी ad में डिस्कस कर क्या है, सो इसको यहाँ पर आपको जो है वो बताना है। How can you avoid the interference of malware in your system? ये डिटेल क्वेरी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से अपनी रीजनिंग करके, अच्छी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, यू हैव टू आंसर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। Which part of your system can be mostly affected by the hacker and how? सो यहाँ पर कुछ 6 कंडीशन स्टेटमेंट्स है, जो कि आपको अच्छी तरीके से इनको रीड करें। ये हर सेक्टर से रिलेटेड है हमारे कोर्स के, तो डेफिनेटली यू विल बी फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी इन द थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप, पर आपको ये टाइम पर सबमिट करनी है, एंड यू डोंट हैव टू आस्क द आंसर्स। आपको सिर्फ इसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत इजीली लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में, पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सो यू जस्ट हैव टू आस्क
the you can say the meaning of these conditional statement, but we cannot give you the answers, because answers are already discussed in the sessions, in the previous sessions, 3 to 4 सेशन बिफोर हम इस सब को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर कोर्स एंड होता है। अब आपसे मुलाकात होगी लास्ट सेशन के अंदर, और लास्ट सेशन जो है वो इस तरह स्लाइड्स का नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है, स्पेशल सेशन होगा। सो काइंडली जॉइन दैट एज वेल और बी अ पार्ट ऑफ आर लास्ट सेशन। आई होप आपको कोई भी क्यूरी अगर हो तो पूछ ले। आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, नहीं आएंगी तब भी हमारा ईमेल ओपन है technolo@official365@gmail.com। वहाँ पर हमसे ताल्लुक, मतलब वहाँ पर आप जो है वो चीज़ें पूछ सकते हैं। वी हैव अ गुड कनेक्शन देयर, सो यू कैन राइट एनी email related to course, and you can ask any sort of questions there regarding your conditional statement, or you have face any sort of technical issue, तो वहाँ भी आप हमारी टेक्निकल टीम से जो है बात करके you can take the recording as well. So here we have ended our course second last session. I hope you have cleared these things all. Thank you so much for joining today's session. Allah Hafiz, take care, and let's meet up in the last session. Allah Hafiz, guys.